Hello guys, welcome back. Today we are with another video. In this video we are gonna discuss GATE previous year questions from 2000 to 2018 of soil mechanics. But we will discuss all the questions of soil mechanics chapter wise. Today we will discuss all the questions of properties of soil, and a similar way we will cover all the questions, right? So guys, we will start the questions without any further delay. And the most important thing I want to tell you that GATE asks a lot of calculative questions, like numerical questions. GATE doesn't ask you about conceptual questions, right? So the important thing during calculation of numerical question is that you need to understand first the question. What we do, we go very rapidly for solution. We doesn't read questions very well. So हम question को अच्छे से read नहीं करते. The important thing is we need to read the question and we need to understand question very well. Suppose we are investing 1 minute in a numerical, so we need to invest 50% of our time on reading and understanding a question. So if you read question very well, half of your job done, right? So it's my personal experience. If you understand the question very well, then you can solve the numerical question very fastly, right? So first you need to understand question, and secondly you need to highlight the given data on a numerical questions, right? Or if you are going for online examination, then you need to write the given data on a paper. That will help you to solve or to find out the answer of the question, a numerical question, very fastly, right? So guys, let us start the today's session without any further delay. So the question number 1 will be displayed to you on the screen. According to question, a clay mineral whose structural unit are held with potassium bond is. So here we will understand important thing. There are 3 important clay minerals, right? One is kaolinite. Kaolinite, it's made from sedimentary rocks, right? So in kaolinite is held with hydrogen bonding, right? It is held with hydrogen bonding, ठीक है? सो केलोनाइट में कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रखना. दूसरा इंपॉर्टेंट क्ले मिनरल हमारे पास है मोंट मोरिलोनाइट. सो मोंट मोरिलोनाइट, दिस मिनरल इज हेल्ड विथ वाटर बॉन्डिंग, राइट? वाटर बॉन्डिंग. And thirdly, we have important mineral, clay mineral, that is illite. So illite is held with potassium bonding, right? Potassium bonding. तो these are very important. इनको याद रखना, ठीक है? गेट में 2018 में पूछा गया है, तो नेक्स्ट टाइम आपको इन दोनों में से पूछ सकता है कि केलोनाइट में कौन सी बॉन्डिंग है या इसमें कौन सी बॉन्डिंग है मोंट मोरिलोनाइट में, ठीक है? तो आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इससे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड टू यू ऑन द स्क्रीन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए कोर कटर ऑफ 130 mm हाइट हैज inner diameter 100 mm and outer diameter 106 mm. The area ratio of the core cutter is. सबसे पहले बात समझना है कि कोर कटर कहाँ यूज करते हैं हम. ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल को हम फाइंड आउट करते हैं फील्ड में, राइट? टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉइल ऑन फील्ड. सो ये ऐसा एक डिवाइस होता है, ठीक है? ये अंदर से हॉलो होता है, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है. तो ये इसका इनर डायमीटर हुआ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इसका आउटर डायमीटर हुआ, ठीक है? और इसकी ये पूरी की पूरी हाइट हुई, ठीक है? तो हाइट हमें कितना दिया हुआ है? 130. First of all, we need to write the formula of area ratio. So area ratio formula is AR लिखता हूँ. It is area ratio is equivalent to outer area minus inner area divided by inner area into 100 gives us area ratio, right? Now we need to find outer area. How we will find outer area? We have provided outer diameter, so we can easily find outer area.
it is pi upon 4 into 106 whole square. After solving this, I want to tell you one more thing here, guys. Pi upon 4 equivalent to 0.78. So you need to remember all these small like things in your mind while writing on GATE examination. It will be very helpful. Like you need to remind as well 1 to 20, square of 1 to 20, cube of 1 to 20, right? All these things will help you, definitely going to help you in your examination of GATE. So pi upon 4 is 0.78, 10 whole square. On solving we will get 8764.08 mm square, right? Then we will find inner diameter, inner area, I'm sorry. So it's pi upon 4 into 100 whole square, so it will become 7800 mm square. On putting here, we will get answer easily. You need to put outer diameter, that is 8764.8 here, minus inner diameter, divide by inner diameter into 100. Easily you can do in your calculator. So you will get about 1236%, right? This is the percentage of area ratio in percentage. So guys, this was the answer of this question. Now coming to next question. Next question says, in a shrinkage limit test, volume and mass of dry soil pad are found to be 50 centimeter cube and 88 gram respectively. Specific gravity of solids is G equivalent to 2.71 and unit weight of water is 1 gram per cc. Find WS. We need to first write what we have to find. हमें क्या फाइंड आउट करना है? That is WS, shrinkage limit. That is equivalent to 1 upon R minus 1 upon G, specific gravity. अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है? You need to understand like these things very quickly because ये आपको समझाया हुआ है, right? So R is, what's R? R is a shrinkage ratio. We can write R equivalent to GD. प्रूव किया हुआ है previously, तो ये याद रखना अगर आपने पता नहीं है, हमने पढ़ाया हुआ, आप जाके देख लेना. So first, what we have been given in the question, we have given volume of soil V equivalent to 50 centimeter cube and mass is given as how much? 88. कौन सा? Dry soil pad. So we have provided dry mass, that is 88 gram. Now what we will do, हमें यहाँ पे G प्रोवाइड किया हुआ है, हमें R निकालना है. R इक्वलेंट टू GD, दैट इज ड्राई स्पेसिफिक ग्रेविटी. ड्राई स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वलेंट टू ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, राइट? सो ड्राई यूनिट वेट होगा मास वेट अपॉन वॉल्यूम. वेट क्या है? वेट है हमारा, मास प्रोवाइड किया है 88 इंटू 9.81 करते हैं हम, ठीक है, डिवाइडेड बाई 50 करते हैं, ठीक है, राइट? वॉल्यूम 50 है. होल डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, देयर इज 1. ऑन सॉलिंग वी विल गेट 1.76, राइट? सो ये हमारा क्या आया? R आया. नाउ वी हैव टू पुट दिस थिंग इन दिस एक्सप्रेशन. वी विल गेट श्रिंकेज दिस WS. सो 1 upon 1.76 माइनस 1 upon 2.71. ये G है, ये प्रोवाइडेड है. सो ऑन सॉलिंग वी विल गेट 0.19, राइट? So ये correct option है. जिस option में भी ये है, this will be correct option. Now coming to next question, the question will be displayed to you on the screen. According to question, in a lab test on a soil sample yields the following results. एक सॉइल को हम लैब में टेस्ट कर रहे हैं और हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं. क्या मिल रहे हैं? नेचुरल वाटर कंटेंट जो मिल रहा है वो 18%, लिक्विड लिमिट 60%, plastic limit 25 and percentage of clay size fraction is 25%. Find IL and activity. IL क्या होता है? liquid limit. First we need to write the formula of IL. IL is equal to WN natural water content minus plastic limit divided by liquid limit माइनस प्लास्टिक लिमिट. ये बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है. लिक्विड लिमिट क्या होता है? प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, राइट? सो यू कैन चेक फ्रॉम द प्ले लिस्ट if you not like go for the, if you don't know about the plastic limit, liquid limit, natural water content, all these things, right? So what's natural water content? Natural water content is provided, it's 18%. We can write
0.18, 18% is 0.18 माइनस प्लास्टिक लिमिट इज 0.25। सीधा आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, पता नहीं मैंने क्यों लाया है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं भूल गया स्टार्टिंग में बोलने के लिए, जो भी क्वेश्चंस मैंने लाए हैं उनका लेवल जो होगा वो मीडियम से डिफ़िकल्ट होगा, मीडियम से हार्ड लेवल होगा। जो भी इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे गेट के वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जितने भी मीडियम से हार्डर लेवल वो मैं यहाँ पे आपको लेके आ रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल होते हैं, ठीक है। नाउ WL लिक्विड लिमिट होता है 60% प्रोवाइड किया है तो 0.6 लेंगे, और ये प्लास्टिक लिमिट 0.25। सॉल्व करने के बाद हमें -0.2 आ रहा है, ठीक है। नाउ हमने IL निकाल दिया, लिक्विडिटी इंडेक्स निकाल दिया। अब हम निकालेंगे एक्टिविटी ऑफ सॉइल, क्या होता है प्लास्टिक इंडेक्स IP अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले। तो प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है, ये वाली चीज़, नीचे वाली चीज़, तो 0.60 माइनस 0.25 प्लास्टिक इंडेक्स IP लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय IC, हमें परसेंटेज ऑफ क्ले कितना दिया हुआ है 25.25। जब इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे ये 1.4 आएगा। जिस ऑप्शन में भी -0.25 के बाद 1.4 है वही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the porosity and degree of saturation of soil sample are 0.7 and 40% respectively in a 100 meter cube volume of soil। एक हमारी 100 मीटर क्यूब की एक मिट्टी है, उसमें पोरोसिटी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन सॉइल की इतनी और इतनी दी गई है, हमें वॉल्यूम ऑफ ईयर फाइंड आउट करना है, राइट। सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ ईयर, ये हमें फाइंड आउट करना है, लिख लिया हमने। यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड है, हमें प्रोवाइड है पोरोसिटी N, वो कितनी प्रोवाइड है 0.7। हमें पता है पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल पता है, पोरोसिटी भी पता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स निकाल सकते हैं, विच इम्प्लाइज डेट वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इक्वलेंट टू यहाँ से 0.7 इंटू 100 करेंगे तो वो हमें 70 मीटर क्यूब आ जाएगा, राइट। फर्स्ट थिंग फाइंड आउट कीजिए वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। सेकेंडली हमें क्या है, हमें इसने डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया है तो दिया क्यों है, देखो यहाँ से एक चीज़ समझते हैं, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारे पास 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ 100% होता है, ठीक है। अब एयर कंटेंट हमें पता नहीं है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसने दिया है 40%, राइट। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, इजीली एयर कंटेंट निकल गया 60%, राइट, वो कितना हुआ 0.6, ठीक है। आगे दो चीज़ें, अब हमें पता है ईयर कंटेंट का एक फॉर्मूला और होता है, ईयर कंटेंट इज वॉल्यूम ऑफ ईयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। देखो हमारे जो वाइड्स होते हैं ना सॉइल के अंदर होते हैं, इन वाइड्स में या तो पानी भरा होगा, ठीक है, या तो ईयर भरा होगा, ठीक है, ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ ईयर कितना है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में, इस पूरे वाइड में ईयर का वॉल्यूम कितना है ये बताता है ईयर कंटेंट, ठीक है। ईयर कंटेंट हमें पता है, ईयर कंटेंट हमें 0.6 हमने निकाल दिया, रख लिया हमने 0.6। वॉल्यूम ऑफ ईयर हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 70 मीटर क्यूब, तो रख लिया। यहाँ से इजीली वॉल्यूम ऑफ ईयर आप निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा आपको 42 मीटर क्यूब के आसपास आ जाए, ठीक है गाइज। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। जब इसको इसके साथ ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट इजीली द आंसर, राइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 42 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ ईयर। Now coming to next question will be displayed to you on the screen. According to question, a given cohesionless soil has E maximum, means maximum wire ratio. E maximum is a wire ratio at loosest state of soil. जब soil हमारी बहुत लूज होगी तब wire ratio होगा maximum. So maximum wire ratio is 0.85, that's 85%. Minimum wire ratio is the wire ratio at dense state of soil. जब soil dense होगी उसका wire ratio reduce होगा तो minimum होगा तो इसको E min से हम represent करेंगे. So E minimum is provided is 50%. Unit weight of soil is 1800 kg per meter cube and water content is 8%. Unit weight of water is also provided 1000 kg per meter cube. Specific gravity of solids is 2.7. The relative density of soil is, हमें फाइंड आउट करना है ID. रिलेटिव डेंसिटी क्या बोलती है, रिलेटिव डेंसिटी टेल्स अस अबाउट कंपैक्टनेस ऑफ सॉइल, कि सॉइल कितनी कंपैक्टेड है, राइट। ये बराबर होता है E max माइनस E min अपॉन
आई डिड मिस्टेक। सो रिलेटिव इंडेक्स हमें क्या होता है, यहाँ कहीं ना कहीं गलती हो गई। ई मैक्स अपन यहाँ पे ई नेचुरल होता है, ठीक है, ई नेचुरल डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिन, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो क्या करना है, यहाँ पे ई मैक्स भी हमें दिया हुआ है, ठीक है, ई मैक्स भी दिया हुआ है, ई मिनिमम भी दिया हुआ है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ये ई नेचुरल, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, देखो सबसे पहले समझने की बात है, हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है फील्ड डेंसिटी, ठीक है, तो ये गामा हो गया, ठीक है, ये कितना हुआ 1800 प्रोवाइड किया है kg पर मीटर क्यूब। अब वाटर कंटेंट प्रोवाइड किया है कितना है 8%, ठीक है। हमें पता है एक इक्वेशन है हमें, गामा इज इक्वल टू G प्लस एस ई इंटू गामा वाटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। अब आपको पता है एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी होता है, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं डब्ल्यू जी, थोड़ा इक्वेशन को अल्टर करेंगे, G प्लस डब्ल्यू जी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन 1 प्लस ई। अब हमें गामा प्रोवाइड किया है 1800, राइट, आप अच्छे से देख लेना, यहाँ पे इक्वलेंट टू जी हमें प्रोवाइड किया है क्वेश्चन में 2.7 प्लस वाटर कंटेंट 0.8 इंटू 2.7 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। यहाँ से इजीली आप ई निकाल सकते हैं, बहुत इजीली आप ई अच्छे से निकाल सकते हैं। इसको यहाँ से यहाँ अल्टर करेंगे तो ई आपका इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो ई हमारा क्या आएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमारा ई आएगा 0.62, ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इस पूरे टर्म को इसके डिवाइड में लाओ, ठीक है, इसको यहाँ पे ले जाओ, सॉरी इस पूरे टर्म के डिवाइड में 1800 को लाओ, इसको यहाँ ट्रांसफर करो, ई आएगा 0.62। उसके बाद ई जब आ गया सीधे फॉर्मूले में रखना है यहाँ पे ई, तो आई डी हमें क्या आएगा, आई डी आएगा ई मैक्स, ई मैक्स से 0.85 माइनस ई नेचुरल 0.62 अभी फाइंड किया, डिवाइड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम इज 0.50, सो हमें आएगा 65% के आसपास, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे मैंने लिख लिया आपके लिए, ये जो इक्वेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। देखो इस इक्वेशन गामा यूनिट वेट ऑफ सॉइल है, सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट का मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे G प्लस ई इंटू गामा रह जाएगा। तो इसी से फिर सारे आगे भी जितने डेंसिटी से सैचुरेटेड सबमर्ज्ड यूनिट वेट सारे इसी इक्वेशन से फाइंड आउट हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इट्स नेचुरल कंडीशन सॉइल सैंपल has a mass of 1.980 and volume of 0.001 meter cube. After oven dry, MD मतलब dry mass equivalent to 1.800 kg, specific gravity is 2.7, unit weight of water is 10 and we have to find degree of saturation S, right? यहाँ पे first एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे we have provided हमें वॉल्यूम प्रोवाइड किया है, ड्राई मास प्रोवाइड किया है सॉइल का, तो हमें क्या निकालना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। देखो S इज इक्वल टू एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी, यहाँ पे G हमें प्रोवाइड किया है, वाटर कंटेंट निकालना है और E निकालना, हमें एक और दो चीज़ें हम निकालेंगे और तो हमारा S निकल जाएगा। तो सबसे पहले वाटर कंटेंट निकालेंगे। देखो वाटर कंटेंट कैसे निकलेगा, वाटर कंटेंट क्या होगा, देखो पहले मास आप सॉइल का मास कितना है वेट स्टेट में 1.98 मास ऑफ सॉइल, यहाँ पे कौन सा मास है, इस मास में मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। उसके बाद जब इस मास को हम ओवन ड्राई करते हैं, इसमें जो पानी होता है वो निकल जाता है, तो मास क्या आएगा ड्राई मास, खाली का खाली सॉलिड रहेंगे, पानी तो मॉइस्चर तो रहेगा नहीं क्योंकि हमने इसको ड्राई कर लिया, डिवाइड बाई एम ड्राई कर लिया इनटू 100, ये हमें क्या देगा वाटर कंटेंट। यहाँ से वाटर कंटेंट निकाला तो निकाल लेंगे फर्स्ट, तो m कितना है 1.980 माइनस md, ड्राई मास भी प्रोवाइड किया है 1.800 होल डिवाइड बाई 1.800 इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे। तो करने के बाद यहाँ से हमें वाटर कंटेंट आ जाएगा 10% के आसपास, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 10% आ जाएगा, ठीक है गाइज। सो
अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यहाँ से है हमें ई निकालना है, ठीक है। ई के लिए हमें क्या करेंगे, देखो हमें ये जो इसका यूनिट वेट दिया है, तो इसी से हम एक इक्वेशन है हमारे पास, हमने अभी भी पढ़ा था, गामा ड्राई होता है जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। जी हमें पता है, यूनिट वेट भी दिया है, ड्राई वेट निकालेंगे, उसके बाद हमें ई निकल जाएगा। अब ड्राई वेट कैसे निकालेंगे, ड्राई मास md अपॉन वॉल्यूम करेंगे, इजीली निकलेगा। यहाँ पे मास को इनटू करना है 9.81, क्योंकि वेट अपॉन वॉल्यूम होता है यूनिट वेट, ठीक है। तो md कितना है 1.800 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है 0.001। तो जब ये इसको करेंगे हम सॉल्व, तो हमें गामा ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल आ जाएगा 17658, ठीक है, जो भी है किलो न्यूटन आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे 17658 इक्वल टू जी 2.78। अब यहाँ पे यूनिट वेट की बात आ रही है, यूनिट वेट 10 किलो न्यूटन प्रोवाइड किया है, इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो 3 जीरो लगाएंगे, के बदले न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। अब क्या है, खेल सारे इसका है, 1 प्लस ई को यहाँ लेंगे, 1 प्लस ई इक्वल टू 27123 राइट, डिवाइडेड बाई 17658। अब देखेंगे केएलसी से करके देखेंगे एक बार, तो यहाँ पे करेंगे 27123 डिवाइडेड बाई 17658, तो ये 1.5 आ गया, ठीक है, 1.52। अब ई क्या आएगा 1.52 माइनस 1, तो ये आएगा 0.52। यहाँ पे था 1 प्लस ई इक्वल टू ये आया, तो उसके बाद जो कट पिट के 0.52 आ गया। नाउ वी विल फाइंड नाउ इजीली एस, ई इक्वल टू डब्ल्यू जी, फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस। सो एस इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन ई। सो एस इक्वल टू वी हैव प्रोवाइडेड डब्ल्यू इज no, we find out already water content is 10%, that is 0.1 into 2.7 divided by 0.52, that will be equivalent to somewhere 54%, right? तो 0.4 हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, हो सकता है क्या होगा, राइट। सो 0.5 is our correct option. Now coming to next question, this will be the final question of today's video. So the undrained cohesion of remolded clay soil is 10 kilonewton. अनड्रेन्ड कोहेजन का मतलब हुआ जब सॉइल को हम ट्राइक्सल टेस्ट के लिए इक्विपमेंट में लेते हैं, तो उस सॉइल में से पानी को ड्रेन आउट होने नहीं देते हैं, ठीक है। तो क्ले की बात हो रही है, तो क्ले में ही कोहेजन होगा, तो Cu अनड्रेन्ड कोहेजन कितना है हमारे पास 10 किलो न्यूटन है, राइट। सो द इफ सेंसिटिविटी ऑफ क्ले इज 20, सेंसिटिविटी एस हम लिखते हैं यहाँ पे 20। अब हमें क्या करना है, द कॉरस्पॉन्डिंग रिमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, रिमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को क्यू यू से हम डिनोट करते हैं, वो होता है 2 इंटू सी यू। यहाँ पे सेंसिटिविटी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको बड़ा क्रॉस मार दो, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में फजूल डाटा प्रोवाइड किया जाता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने आपको बोला व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन वेरी वेल, because here according to question sensitivity was also provided, but we don't need sensitivity, so the question will confuse us, so we need to understand it very well. So now Q equivalent to 2 Cu, here 2 into Cu is also already provided is 10, so we will easily find out Q equivalent to 20 kilonewton per meter square. So this will be the correct answer. Which one be the correct? C option will be the correct option. आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो क्या करना, लाइक करना, आप तो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो। व्हाट विल हैपन इफ यू टैप ऑन द लाइक बटन। सेकेंडली शेयर करना, thirdly comment करना, ठीक है। and tell me how was the content, and if you are feeling somewhere confused, so tell me in comment section. I will be very glad to explain you again. So hope guys आपको सारा अच्छे से समझ आया होगा. So we will be in next video with awesome content for you. Till then, you take care.